یہ تو میری ہے. کہا حضرت علی نے یہ زرا میری ہے. اس یہودی نے کہا واہ آپ امیر المومنین ہیں, شہر کے سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب میری چیز کو بھی آپ اپنی چیز بنا لیں گے؟ ارے لینا تو ویسے ہی لے لیجئے, لیکن یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میری ہے؟ ارے آپ تو امیر المومنین, ہم آپ کا کیا کر لیں گے؟ حضرت علی نے کہا دیکھو شانتی سے بات کرو, میں تمہاری چیز کو اپنی چیز نہیں بتا رہا ہوں, لیکن یہ زرا میری ہے, اور اگر تم مجھے خوشی خوشی نہیں دو گے اور یہ نہیں مانو گے تو میں عدالت میں مقدمہ دائر کروں گا. اس نے کہا امیر المومنین ایسے لینا تو لے لو, لیکن یہ میں بالکل نہیں مانوں گا کہ یہ زرا آپ کی ہے, یہ زرا میری ہے. اگر آپ کو عدالت سے لینا ہے تو عدالت سے لے لیجئے. حضرت علی نے وہ زرا اس کو دے دی, پکڑ اب عدالت سے لیں گے, اب تو ثابت کر یہ زرا میری ہے اور میں ثابت کروں گا یہ زرا میری ہے. آہا اب دیکھیے ویسے پبلک کی شکایت اتنی کم زیادہ ہے کہ مائک میں آواز اتنی کم تھوڑی ہونی چاہیے یار. ارے میں ویسے ہی بہت دور نہیں ہٹ رہا ہوں, پیچھے یہ ٹکرا جاتی ہے میری ٹوپی سے, اس لیے ہم تو بہت قریب ہیں, ورنہ ہم کافی دور سے بولتے ہیں. آپ رہنے دیجیے. تو سنیں لیجیے, بڑھ گیا نا, زیادہ غصہ مت دلائیے, نہیں اتنا بڑھا دے گا کہ پھر. حضرت علی نے مقدمہ دائر کر دیا. حضرت علی نے مقدمہ دائر کیا. مدعی کون ہے؟ علی. مدعا علیہ کون ہے؟ یہودی. مقدمہ کس نے دائر کیا؟ علی نے. کس کے اوپر؟ یہودی کے اوپر. یہودی کو نوٹس دیا گیا. یہودی اپنے تاریخ پر آیا. حضرت علی اس کٹ گھرے میں, یہودی اس کٹ گھرے میں. آپ نے قاضی شریح, قاضی کون ہے؟ جج شریح. یہ قاضی کس نے بنایا؟ علی نے. جج کس نے بنایا؟ حضرت علی نے. حضرت علی نے جج بنایا کس کو؟ قاضی شریح کو. اور اسی عدالت میں مقدمہ قاضی شریح نے کہا علی سے, علی بولو کیا معاملہ ہے تمہارا؟ کہا معاملہ تو میں نے لکھت طور پر دے دیا کہ میری زرا غائب تھی, 6 مہینے ہو گئے, اور وہ زرا میں نے یہودی کے ہاتھ میں دیکھی. یہ یہودی جو زرا لے کر آیا ہے یہ زرا میری ہے. یہ کہتا ہے یہ میری ہے, لہذا مجھے میری زرا دلوا دی جائے. حضرت علی نے یہ کہہ دیا. آج کل کی طرح 20-20 سال مقدمے نہیں لٹکتے تھے, اسی دن فیصلہ ہو رہا ہے. دیکھیے حضرت علی نے جب یہ بات کہی, قاضی شریح نے کہا اے یہودی. حضرت علی کہتے یہ میری زرا ہے, تم بتاؤ یہ زرا کس کی ہے؟ یہودی بولا یہ زرا میری ہے. حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں, غصہ دلا رہا ہے, لیکن ان کو غصہ نہیں آ رہا ہے. یہی مومن کی شان ہے. اس وقت آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, آپ اپنی ایمان کی شان باقی رکھیے. حضرت علی کو غصہ دلایا گیا. حضرت علی نے کہا جھوٹا کہا جا رہا ہے, عدالت میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. حضرت علی کو غصہ آ سکتا تھا, کبھی نے, میں نے پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, مجھے جھوٹا کہہ رہا, لیکن نہیں, تم تو کہو گے, عدالت فیصلہ جج صاحب کریں گے میں جھوٹا ہوں کہ نہیں ہوں. حضرت علی کو غصہ نہیں آ رہا. حضرت علی نے کہا کہ زرا تمہاری ہے. کہاں؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تمہاری ہے؟ یہودی کا جواب سنو. قاضی صاحب, جس کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے اور وہ اس چیز کا مالک ہوتا ہے, ثبوت اس سے نہیں مانگا جاتا ہے. ثبوت اس سے مانگا جاتا ہے جو دوسرے کے پاس کسی چیز کو اپنی چیز کہتا ہے, وہ ثابت کرے, وہ ثبوت دے کہ وہ زرا اس کی ہے. میرے پاس یہ زرا ہے, یہ میری ہے, اور اس کا ثبوت
सबूत یہ ہے کہ یہ میرے پاس ہے, میں اس کا مالک ہوں. اب علی کہہ رہے ہیں کہ یہ میری ہے, تو یہ علی ثابت کرے کہ ان کی ہے تو کیسے ہے. آج کل ہمارے باس سے اگر کوئی اتنا کہہ دے تو اس جج کو ہی دوسرے دن رام رام سبتے ہو جائے گی اس کی. ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ اچھا ہم سے پوچھ رہا ہے. قاضی شریح نے کہا علی یہودی کی بات صحیح ہے, تم کہہ رہے ہو یہ زنا میری ہے, تم بتاؤ ثابت کرو, کوئی گواہ لاؤ. حضرت علی نے کہا میرے پاس گواہ ہے. کہا کیا گواہ ہے؟ کہا میرے بیٹے حسن ادھر آؤ. حضرت حسن کو کٹگھرے میں کھڑا کیا گیا. آئے حسن بتاؤ یہ زنا کس کی ہے؟ حضرت حسن نے کہا قاضی صاحب یہ زنا میرے باپ کی, میرے ابو کی, میرے والد محترم کی ہے, اور اس زنا کی پہچان یہ ہے کہ اس زنا کے اندر یہ علامت ہے, اور آپ دیکھ لیجئے یہ علامت موجود ہے یا نہیں. یہودی ادھر سے بولتا ہے قاضی صاحب علی نے میری زنا اپنے ہاتھ میں لے کر کچھ چیز دیکھ لی, آج جو علامت بتا رہے ہیں یہ ہمارے ہاتھ سے زنا لے کر دیکھنے کے بعد بتا رہے ہیں. ان کا بیٹا قاضی صاحب کہتے ہیں یہودی جب تم سے بولنے کو کہا جائے تب بولنا, ابھی تمہارے بولنے کا وقت نہیں ہے. اے علی تم نے گواہی کے طور پر اپنے بیٹے کو پیش کیا ہے. شریعت کہتی ہے, محمد رسول اللہ کا فرمان کہتا ہے باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی, کیونکہ بیٹا اکثر وہی بولتا ہے جو باپ چاہتا ہے. اے علی تمہارے بیٹے کی گواہی کل عدم قرار دی جاتی ہے, بیٹے کی گواہی تسلیم نہیں ہے, کوئی اور گواہ لاؤ. حضرت علی نے کہا میرے پاس ایک گواہ اور ہے. کہا کون؟ کہا میرا غلام. غلام کو بلایا گیا, غلام نے گواہی دی. حضرت علی نے فرمایا یہ غلام جو کہہ رہا ہے اس کی گواہی دیکھو. قاضی صاحب کیا کہتے ہیں شریح, اے علی آپ بھول رہے ہیں غلام اپنے مالک کی ماتحتی میں ہوتا ہے, اور مالک جو بلواتا ہے غلام وہ بولتا ہے, لہذا شریعت غلام کی بھی گواہی مالک کے حق میں قبول نہیں کرتی. حضرت علی کٹگھرے کو چھوڑتے ہیں. جج نے پوچھا کٹگھرا کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کہا قاضی صاحب بیٹے اور غلام کے علاوہ میرے پاس کوئی تیسرا گواہ نہیں ہے, اس لیے اب میں کوئی گواہ نہیں لا سکتا. آج کل کی طرح 100 اور 500 روپے میں جھوٹے گواہ نہیں ملا کرتے تھے, خریدے نہیں جاتے تھے, بکتے نہیں تھے. حضرت علی نے کٹگھرا چھوڑ دیا اور قاضی صاحب نے فیصلہ سنا دیا. علی اپنے زنا کی گواہی میں دو عادل گواہ پیش نہیں کر سکے, اس لیے یہ زنا یہودی کو ہی دی جاتی ہے, یہ فیصلہ یہودی کے حق میں کیا جاتا ہے, اور یہ زنا اسی کی مانی جائے گی جس کے پاس ہے. اے یہودی تم اس زنا کے مالک ہو. ملک کس کے ہاتھ میں ہے؟ علی کے. قاضی کس نے بنایا؟ علی نے. اور فیصلہ کس کے خلاف جا رہا ہے؟ حضرت علی کے. یہ اس بات کی جیتی جاتی علامت ہے کہ حضرت علی کے زمانے تک اسلامی عدالتیں کسی کے دباؤ میں اور کسی کے پریشر میں کام نہیں کیا کرتی تھی, کیونکہ کورٹ اور عدالت کا کام کسی کے پریشر میں, کسی کے دباؤ میں نہیں ہوتا ہے. عدالتیں اور کورٹ خود مختار ہوتے ہیں, وہ کسی کے پریشر میں کام نہیں کرتے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ سمجھ گئے نا؟ بس اتنا ہی کافی ہے, زیادہ مت سمجھو. زیادہ سمجھو گے تو پھر پتہ نہیں ہیلی کاپٹر خود بیٹھے بیٹھے بنا لو گے. اتنا ہی سمجھو جتنا میں نے سمجھایا. اس زمانے میں عدالتیں پریشر میں کام نہیں کیا کرتی تھی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, اگر آج ہائی کورٹ کے جج نے یہ کہہ دیا کہ فلاں فلاں کا کام صحیح نہیں تھا, یہ
के जज ये कहते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये हमारी मौजूदा अदालतों और हमारी मौजूदा सिस्टम का हाल है। इंसाफ मिले तो कैसे मिले, न्याय मिले तो कैसे मिले। मेरे भाइयों, ये पूरे सिस्टम को हमें और आपको सबको समझना पड़ेगा, और इन तमाम चीजों के बावजूद हमें सब्र भी करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम? ये चीज थी। हमें और आपको अक्ल के नाखून लेना है, हमें और आपको गौर करना है। इस मुल्क के अमन और सलामती के लिए, इस मुल्क में शांति को बहाल करने के लिए, वरना मेरे भाइयों आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, हुकूमत, सल्तनत, ओहदा, पावर सब कुछ होने के बावजूद क्या इंसाफ होता था, क्या न्याय होता था। सुनना चाहते हो तो सुनो। हजरत उमर फारूक, बड़ा दर्दनाक और इबरत आमेज वाक़या सुना रहा हूं, जरा इधर तवज्जो दीजिएगा। हजरत उमर रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में निकलते हैं और गश्त करते हैं। मजबूर आदमी की मजबूरी देख रहे हैं, कौन मजबूर है, कौन परेशान है। हजरत उमर जब रात के अंधेरे में निकलते हैं और मजबूरी देखना चाहते हैं तो क्या देखते हैं कि एक आदमी अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा और रो रहा है। हजरत उमर उसके पास गए और बैठ गए। उसको मालूम नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन है। जरा इस वाक़े को थोड़ा सा सुन लीजिए। जिनको उठना है और जाना है, इस वाक़े को सुनने के बाद चला जाए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये वाक़या सुन ले। चूंकि मैं ये दिखाना चाहता हूं कि आज हमारा नारा है, आज हमारा नारा है क्या, वो नारा बहुत मशहूर है, आपने भी सुना होगा। वो नारा क्या है मालूम है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बहुत अच्छा नारा है। अगर नीयत सही हो और इरादे नेक हो तो ये नारा इतना अच्छा है कि इस नारे पर हमें सलाम पेश करना चाहिए। लेकिन मैंने शर्त लगाई है, अगर नीयत अच्छी हो और दिल साफ हो तो। अब आइए, ये नारा कहां से शुरू हुआ था और इस नारे का सच्चा हक किसने अदा किया, आओ मैं दिखाऊं। हजरत उमर रात के अंधेरे में निकलते हैं और एक गरीब आदमी को, मजबूर आदमी को अपनी झोपड़ी के बाहर देखते हैं बैठा हुआ। उसके पास बैठ गए, उसके करीब जाकर बैठ गए। मेरे भाइयों, जैसे हजरत उमर उसके पास बैठे, सीरत फारूक में दर्ज किया गया है, वह काना मजूसियन औ यहूदियन, वो बूढ़ा या तो मजूसी था या यहूदी, यानी मुसलमान नहीं था, या तो मजूसी था या यहूदी। हजरत उमर उस मजूसी या यहूदी आदमी के पास बैठ गए, बूढ़ा नहीं जवान, उसके पास बैठ गए। उससे पूछने लगे कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या परेशानी है। उसने कहा जाओ यार, तुम मेरा दिमाग खराब करने आ गए, जाओ ना यहां से। उसको मालूम नहीं कि ये अमीरुल मोमिनीन है, ये पूरे इलाके का अमीर है, मालूम नहीं है, उसने कभी करीब से देखा नहीं है। अचानक दूसरे शहर में पहुंचे हुए हैं। अचानक वहां के गवर्नर से कहते तुम बैठो, मैं तुम्हारे शहर का जायजा लेता हूं, देखें कौन अमीर है, कौन परेशान है, देखता हूं कि तुम क्या कर रहे हो। हजरत उमर उस गरीब आदमी के पास बैठे जो मजूसी या यहूदी था। कहा तुम्हें परेशानी बताना पड़ेगी। उसने कहा मेरा दिमाग खराब करने आ गए हो, कौन होते हो, मैं नहीं बताता। कहा देखो यार, अब देखिए उसको बातों में बहलाया, देखो यार मैं भी रात में निकला हूं, मुझे भी परेशानी है, क्यों ना हम अपना दुख तुम्हें बता दें और तुम्हारा दुख हम जान लें, ऐसे एक दूसरे का दिल हल्का हो जाएगा। उसको बनाया, कहने लगा हाँ ये बात तो सही है, क्या बताऊं मेरे भाई। अब वो भाई बन के बात करने लगा, क्या बताऊं मेरे भाई, मैं बहुत परेशान हूं। एक आदमी आता है, तंदुरुस्त है, मोटा ताजा है, और वो बड़ा सुरूख वाला है। वो आता है, रात के अंधेरे में मुझे मेरी झोपड़ी से कान पकड़ के बाहर निकाल देता है।
फिर वो मेरी बीवी के साथ जिना करता है, मेरी बीवी के साथ मुंह काला करता है और न करने पर उसको जान से मारने की धमकी देता है। मैं क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूं, मैं उसका कुछ कर नहीं सकता क्योंकि बड़ा पावर वाला है। मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैं अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर पाता हूं। उसने मुझे इस तरह बंदिशों में बांध दिया है कि मैं अपनी झोपड़ी छोड़कर कहीं दूसरी जगह भी नहीं जा सकता हूं। हजरत उमर ने यह सुना, दिल से कराह गए, लेकिन उस आदमी के सामने आंसू नहीं निकाले। हजरत उमर ने इतना कहा, मेरे भाई यहूदी है या मजूसी, लेकिन उमर कह रहे हैं या अखी, मेरे भाई, इस्लाम की तालीम यही है कि एक दूसरा तुम्हारा भाई है। मेरे भाई, मेरे भाई, क्या वो कल भी आएगा? कहा नहीं, वो कल नहीं आएगा, वो एक दिन छोड़ कर आता है, यानी अब कल के बजाय वो परसों आएगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, परसों वो तुम्हारी बीवी के साथ जिना नहीं कर पाएगा। अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो, तुम उसकी ताकत का और उसके पावर का इस्तेमाल तुम नहीं जानते हो। हजरत उमर ने कहा, देखो भाई, मैं तो मुसलमान हूं, मैं अपने रब पर भरोसा करता हूं और इतना जानता हूं कि अगर मेरे रब की मदद हुई तो वो परसों इंशाअल्लाह तुम्हारी बीवी के साथ जिना नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरी 2-3 बातें मान लो। उसने कहा क्या है? कहा देखो, अपनी बीवी से कह देना खाना बनाकर तैयार रखे, पहली चीज। दूसरी चीज, अपनी बीवी को समझा दो कि जब वो परसों तुम्हारे पास आए, जब वो जिना करने के करीब हो, तो उससे कह दे कि देखो अब तो तुम रोज आते हो, हमारा तुम्हारा मामला तो अब जिंदगी भर चलेगा, तुम अब आए बगैर मानोगे नहीं और मेरे बगैर तुम रहोगे नहीं, तो अब क्यों ना मैं दिलो जान से तुम्हारी हो जाऊं। प्यार में उसको अपने चंगुल में ले ले, बहकी बहकी बातें कर दे और ये कह दे कि देखो, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता है कि तुम मेरे साथ ये काम करते हो और रोशनी हो, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगी, लेकिन चिराग बुझा दो, चिराग बुझाने के बाद बाकी काम मैं संभाल लूंगा। इतना कहा, बस ये 2 काम कर देना। कहा ठीक है। हजरत उमर के कहने के मुताबिक उस यहूदी या मजूसी ने अपनी बीवी को समझा दिया। हजरत उमर दूसरे दिन, यानी दूसरा दिन छोड़कर तीसरे दिन उसके घर, उसके आने से पहले पहुंच गए और झोपड़ी के पीछे छिप गए। तलवार मियान से निकाल रखी थी। वो आदमी अपने वक्त पर आया, सीधे झोपड़ी में घुसा, उसके शौहर को कान पकड़ के बाहर निकाला, बीवी अंदर। वो उसकी बीवी से लिपट गया, चिपटने लगा। उसकी बीवी कहने लगी कि देखो, अब तो हमारा तुम्हारा मामला बहुत आगे बढ़ गया, तुम हमारे बगैर रह नहीं सकते और तुम ये काम किए बिना मान नहीं सकते, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दिलो जान से आपके करीब हो जाऊं और आपको पूरे दिल से मैं खुशी दे दूं, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब आप चिराग बुझाएंगे, क्योंकि मुझे अंधेरे में सुकून देने में एंजॉय होता है, मुझे लुत्फ आता है। उसने कहा चलो आज तो मेरी जिंदगी के अरमान पूरे हो गए। उसने कहा ठीक है। उस जमाने में जो जुमले चलते थे, उसने वो जुमला बोला जैसे आज हमारे जमाने में चलता, डार्लिंग डार्लिंग। ठीक है डार्लिंग। चिराग बुझा दिया, लिपटने लगा, चिपकने लगा, करीब था कि दोनों के जिस्मों से कपड़े उतर जाएं। हजरत उमर ने देखा चिराग बुझ गया, तलवार मियान से निकाले हुए थे, अंदर घुस गए। जैसी झोपड़ी के अंदर घुसे, वो आदमी समझा कि इसका शौहर आ गया। उसने कहा ए, हट, हट। पहले तो उमर घुसे तो उसका शौहर बोला कौन? हजरत उमर तलवार मारने वाले थे, लेकिन सोचने लगे अंधेरा है, मैं तलवार चलाऊं तो कहीं ऐसा ना हो कि आदमी की जगह बेचारे की बीवी पर चल जाए, अंधेरे में कहीं वो ना मारी जाए, अंधेरे में कहीं वो ना मारी जाए। इसलिए उसके मुंह से आवाज निकलवाना जरूरी था ताकि मर्द कौन है औरत कौन है। तो हजरत उमर जूता पटकने लगे। उसने कहा ए कौन?
अभी क्यों आ गया बे? वो समझा शौहर, भाग, अभी नहीं, अभी तो हम शुरू भी नहीं हुए, भाग, हट। हजरत उमर यही उसकी जबान से निकलवाना चाहते थे, फौरन उसके आवाज पर झपटा मारा, उसके बाल उसके उमर फारूक के हाथ में आ गए, लेकिन बाल बहुत बड़े बड़े थे, उसके बाल बड़े थे, खींचा। अब बड़े बालों पर शक हुआ, कहीं ये औरत के बाल तो नहीं है, पकड़ के खींचा। उसने कहा, ए क्या कर रहा है? समझ गए कि यही आदमी है, फौरन उसी की आवाज पर तलवार मारी और एक ही तलवार में उसकी गर्दन कट के जमीन पर गिर गई। तारीख में लिखा है कि उमर फारूक ने अपनी जिंदगी में जितने लोगों को कत्ल किया है, कभी एक तलवार के बाद दूसरी तलवार मारने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही तलवार में उसकी गर्दन तन से जुदा हुई है। हजरत उमर ने कभी किसी की तलवार की इतनी तारीफ नहीं की। खालिद इब्न वलीद से जब एक जंग में उन्होंने 9 तलवारें तोड़ी थी तो कहा था ये सैफुल्लाह है, अल्लाह की तलवार। लेकिन उमर के बारे में ये जुमले कहे थे, उमर तुम तलवार निकालने में बहुत जल्दी करते हो, इतनी जल्दी न किया करो। जब तुम मियान से तलवार निकाल लेते हो, तुम्हारी नंगी तलवार को देखकर आसमान की पेशानी पर भी पसीना आ जाता है। नंगी तलवार मारी यहूदी की उसकी गर्दन कट के जमीन पर गिर गई उस जिनाकार की। हजरत उमर ने कहा, बहन जल्दी से चिराग जलाओ। जब चिराग जलाया और उसकी गर्दन को देखा इधर से ऐसे करके, तो उसकी कटी हुई गर्दन को देखकर मुस्कुराए और आसमान पर नजरें डाल के कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर कहा, मेरी बहन जल्दी से खाना लगाओ। खाना बनाकर रखी होगी, हाँ मैंने बना लिया, जल्दी से खाना लगाओ। खाना लगाया गया। हजरत उमर ने पेट भर के खाना खाया और कहा, आज मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा आसूदा होकर पेट भरकर खाना खाया। मेरे भाई, यहूदी की बीवी के हाथ का पका हुआ खाना, हाँ, कौन खा रहा है? अमीरुल मोमिनीन। देख रहे हैं भाईचारा, देख रहे हैं प्यार, देख रहे हैं मोहब्बत। यहूदी देख रहा है ऐसे। हजरत उमर जाने लगे, वो रोते हुए, उस औरत का पति रोते हुए पकड़ कर पीछे से पकड़ता है कपड़ा। कौन हो भैया तुम? ये लाश मेरे पास घर में। अभी अगर उमर के साथियों को पता चल गया या उमर को, तो कत्ल के जुर्म में मेरी भी गर्दन काटी। मैंने कत्ल नहीं किया, तुमने क्या किया? ये मदद करने आए थे या फंसाने आए थे मुझे? और चीख चीख के रोने लगा। हजरत उमर ने उसको तसल्ली दी, का भाई रोने की जरूरत नहीं, उमर के साथी कुछ नहीं करेंगे। उमर के साथी इस लाश को ले जाएंगे, इसको सिएंगे, टाके मारेंगे और कहीं ले जाकर कब्र में दफन कर देंगे। उमर के साथी आएंगे? आप क्या मेरे लिए कुआं खोद रहे? उमर को अगर पता चल गया तो मेरा क्या होगा? फरमाया, मैं ही उमर हूं, मैं ही अमीरुल मोमिनीन हूं। तुम्हारी नजर में अमीरुल मोमिनीन हूं, लेकिन हकीकत में मैं खादिम हूं। मुझे लोगों का खिदमत करने वाला बनाया गया है। खादिम का सही तर्जमा करूं? खादिम का सही तर्जमा जानते हो क्या हुआ? चौकीदार। समझ गए ना? मैं तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन हूं, नहीं नहीं तुम्हारे लिए हूं, लेकिन मैं ही खादिम हूं, यानी मैं ही चौकीदार हूं। असली चौकीदार इसको कहते हैं, जिसके जमाने में एक यहूदी भी मायूस नहीं हो सका, एक यहूदी भी परेशान, एक मजूसी को भी तकलीफ नहीं हुई। मैं देश के चौकीदार से गुजारिश करूंगा, मेरे प्यारे चौकीदार साहब, मोहतरम प्रधानमंत्री जी, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। इस देश के एक एक नागरिक की रक्षा आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी। बड़े विनम्र निवेदन करता हूं आपसे, मौलाना जर्जीस, ईमानदारी के साथ बताइए,